Hello everyone. Dear students, as you know, this is going to be the second part of the chapter going places. Third by A.R. Barton. Today we have to start the chapter right from page number 79 from the last passage. But before going ahead, let me tell you a little recap of the chapter. First, you must understand the term going places, what the title suggests us. It suggests us the showing a lot of talent, likely to become very successful. After that, let me tell you, basically you have to learn two things we have to read in this chapter. First is adolescent fantasizing and hero worship. Adolescent age 13 to 17. Imagination करना, काल्पनिकता, hero worship, and we came to know about hero worship when we read about Danny Casey. And about him, Sophie's one of wild stories. Okay, let me tell you before going ahead the basic characters involved in the story. I have although mentioned earlier one as well. The first one, Sophie, Jancy, Geoff, Derek, Danny Casey, Tom Finney, and father and mother of Sophie. These are the characters involved in this story. Sophie, the main character, highly imaginative girl. Jancy, very realistic girl. Geoff and Derek, both are brothers of Sophie. Danny Casey, a reputed young Irish player. Tom Finney was also one of the greatest player of his time, and apparently father and mother of Sophie. These are the characters involved in the story going places. So today we have to start it. We have read all about the description of Geoff. Geoff की characteristics के बारे में यहाँ पर बताया गया चैप्टर में कि वो रिजर्व बहुत ज़्यादा रहता था और कहीं ना कहीं ये जो रिजर्व नेचर था ये सोफी को अखरता था. लेट्स सी राइट फ्रॉम हियर ऑन पेज नंबर 79 from the last passage. He was frowning at oily component he curdled in his hands. Frowning होता है एक तरीके से त्योरियां चढ़ाना. At the oily component, component का मीन्स यहाँ पर है पार्ट भाग. He curdled, swung किए हुए, झुलाते हुए, in his hand अपने हाथ में, as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. जैसे उसे बात करने का प्रयास कर रहा हो. इस प्रकार से वो उस ऑयली कंपोनेंट को, उस पार्ट को वो लिए हुए था. ऐसा लग रहा था कि मानो कहीं वो उससे कन्वर्सेशन करना चाहता हो. I met Danny Casey, सोफी सेड. और जैसे ही सोफी ये सेंटेंस बोलती है वो कहती है I met Danny Casey. He looked around abruptly. He looked around. उसने मुड़कर देखा. Abruptly, तेजी से, शीघ्रता से. नेक्स्ट देखिए वेयर. और फिर क्या पूछा उसने कि वेयर इन द आर्केड. व्हाट यू मीन बाय आर्केड? आर्केड मीन्स द कवर्ड पैसेज, एक ढका हुआ रास्ता.
एक मेहराब के तौर पर, उसको हम क्या कहेंगे, आर्केड में। वो कहती है आर्केड में फनली एनफ, बहुत ज्यादा मजा किया था। इट्स नेवर ट्रू, इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सत्य नहीं हो सकता। शी shook her head, उसने सिर हिलाया। Chastened at his awareness, realizing mistake, at his unawareness, अनभिज्ञता की वजह से, that he was always the first to share her secret, that he was always, कि वो हमेशा वो रहा है, जब भी वो अपने सीक्रेट्स बताती है तो सबसे पहले अपने सीक्रेट्स अपने ब्रदर जोफ को बताती है। ये समझते हुए he shook her head, उसने अपना सिर हिलाया। Before that there is a sentence, let me tell you. When she said in the arcade, his brother Job said, it's never true, I did too. You told Dad, क्या तुमने इसके बारे में डैड को बताया? She shook her head, फिर वो अपना सिर हिलाती है और कहती है कि वो तुम ही हो जॉब जिसको सबसे पहले मैं अपने सीक्रेट्स बताती हूं, अपनी जो बातें हैं वो सभी शेयर करती हूं। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। जॉब किस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहता? बिकॉज एवरीवन इन आवर फैमिली नो एग्जैक्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोफी, दैट शी इज ए डे ड्रीमर, although it is also reality that most of the family members believe and like to watch the game of Danny Casey, but it doesn't mean that she met Danny Casey. There I was looking at the clouds in Roy's window when someone came and stood beside me. देखिए इमेजिनेशन, ये काल्पनिकता है। वो कहती है कि there I was looking at the clouds in Roy's window when someone came and stood beside me. रॉयस विंडो में जब मैं कपड़े देख रही थी, उसी समय कोई पास आता है मेरे, अचानक से पास खड़ा हो जाता है। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैं पीछे देखती हूँ, एंड हु शुड इट बी? डैनी केजी। ये कौन हो सकता है? क्या डैनी केजी है? ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक? जो कहता है ठीक है, लेकिन वो कैसा दिखाई देता? व्हाट डज ही लुक लाइक? ओ कैम ऑन, कैम ऑन मीन्स छोड़िए इस बात को। यू नो, तुम जानते हो व्हाट ही लुक्स लाइक, वो कैसा है? क्लोज टू आई मीन, क्लोज टू आई मीन मतलब मैं जानना चाहता हूं कि नजदीक से वो कैसा दिखाई देता है। वेल ही हैज ग्रीन आईज, उसकी ग्रीन आईज है। जेंटल आईज, यहां जेंटल आईज का मीन्स होगा माइल्ड आईज, विनम्रता से भरी हुई आंखें। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, लेकिन वो इतना टॉल नहीं है जितना कि तुम समझते हो। She wondered if she should say about his death. अब उसको थोड़ी सी हैरानी होती है। She wondered that she should say something about his death, कि क्या वो उनके दांतों के बारे में भी टिप्पणी करें। She wanted to say something about his death, but after that she decided against it because the teeth were not so appropriate or not so in good, as looking. That's why she tried to deny the fact. She doesn't want to tell all about the teeth. Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. Their father had washed. उनका जो पिता था वो नहा चुका था। When he came, जब वो आया, in his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. और उसके अंदर स्मेल का मतलब है हैविंग स्मेल। सोप, सोप की जो स्मेल थी वो अभी भी उसके शरीर से आ रही थी। He switched on the television, स्विच ऑन किया टेलीविजन को उसने। टॉस्ट वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज, और लिटिल डेरेक के एक जूते को टॉस कर दिया, उछाल दिया। फ्रॉम हिज चेयर इनटू द सोफा, अपनी चेयर से सोफा की। एंड सेट डाउन विद ए ग्राउंड, ग्राउंड होता है मुकार बना। ये क्या है? एक तरीके से इस प्रकार से उच्चारित करते हुए, शॉर्ट लो साउंड फ्रॉम द थ्रोट। सोफी में डेनी केजी जॉब सेट। अब जॉब बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है कि सोफी डेनी केजी से मिली। सोफी रिंगल होता है मूव अलोंग, थोड़ा सा हल्का सा अपनी जगह से खिसकना, हिलना।
Where she was sitting at the table, जबकि वो जहाँ टेबल पर बैठी थी वहां से थोड़ी सी वो हिलती है. Her father turned his head on his thick neck to look at her. उसका पिता वापिस मुड़कर उसको देखने का प्रयास करता है. His expression was one of disdain. Disdain को कहेंगे full of hatred, नफरत से भरे हुए, घृणा से भरे हुए, neglected way में वो उसकी तरफ देखता है. It's true, Job said. इसीलिए जॉब क्या कहता है कि it's true, ये सत्य है. I once knew a man who had known Tom Finney. मैं एक समय एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था. मैं एक समय ऐसे व्यक्ति को जानता था, वो व्यक्ति जिसको मैं जानता था, कहने का मतलब है वो व्यक्ति किसको जानता था, टॉम फिनी को जानता था. और टॉम फिनी अपने समय का क्या रहा है, एक बेहतरीन फुटबॉलर रहा है. His father said reverently, respectfully to the television. वापिस टेलीविजन की तरफ देखते हुए उसके फादर ने कहा, बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो. लेकिन वो बात बहुत समय पहले की. He told us, Job said, तुमने हमें बताया था, जॉब ने कहा, कैजी माइट बी दैट गुड समडे. कैजी भी शायद उतना ही बड़ा महान बनेगा एक दिन. बेटर देन दैट इवन, उससे भी बेहतर. ही इज द बेस्ट, वो सबसे बेहतरीन है. If he keeps his head on his shoulders, वो अच्छा बनेगा. He may be the best with the passage of time, but what he must have to do, just keep his head on his shoulders. उसको बिल्कुल संयमित रहना होगा. इसका मतलब क्या हुआ, to keep his head on his shoulders means संयमित होकर के रहना. If they look after him properly, और वे उसके परिवारजन यदि उसकी देखभाल अच्छे ढंग से करेंगे. A lot of distractions for a youngster in the game these days. इन दिनों क्या है, बहुत ज्यादा obstructions आती हैं, बहुत ज्यादा distractions आती हैं. Distractions means that the things that disturbs the mind. Distractions का मतलब क्या है, उन चीजों से है, उन वस्तुओं से है जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं. कहता कि इन दिनों युवाओं के लिए जो गेम में हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. He will be all right, वो ठीक रहेगा. He is with the best team in the country, क्योंकि वो एक बेहतरीन बेस्ट टीम के साथ है. He is very young yet, और अभी युवा भी है. He is older than I, मुझसे थोड़ा बड़ा है. Too young really for the first team, लेकिन प्रथम श्रेणी टीम के लिए वो बेहतरीन है, बहुत युवा है अभी. You can't argue with the sort of ability. तुम उसकी योग्यता के ऊपर तर्क नहीं कर सकते, तुम उसकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते. He is going to buy a shop, Sophie said from the table. अब सोफी बोलती है. चिल नाउ जो कन्वर्सेशन है वो जॉब और उसके फादर के बीच में. She is very silent till now, but right now she is going to say something, and the first sentence is uttering here is she is going to utter that is totally full of imagination. वो कहती है he is going to buy a shop, वो एक दुकान खोलने जा रहा है. Sophie said from the table. Her father grimaced means distorted, एक तरीके से मुंह बनाना. वो उसका पिता जो है वो मुंह बना लेता है, थोड़ा सा नाराज होता है. Where would you hear that? तुमने ये कहाँ से सुना है? He told me so. सोफी कहती कि उसने मुझे ऐसा बताया है. He muttered something inaudible. Audible होता है जो सुनाई दे इसके. Inaudible जो हल्का सा सुनाई दे, पूरा सुनाई ना दे. And dragged himself round in the chair. और उसने चेयर को घसीटा आगे की तरफ. This another of your wild stories. यहाँ पर wild का मतलब क्या है? This another of your wild stories, baseless. अर्थात उसका पिता समझ गया कि ये एक और मनगढ़ंत कहानी है उसकी, बेसलेस स्टोरी है, क्योंकि वो जानता था उसके बारे में कि वो डे ड्रीमर है. She met him in the arcade, Job said. जॉब ने कहा वो मिली थी आर्केड में उसे. And told him how it had been. और उसने बताया था इस प्रकार से. One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble. One of these days को क्या कहेंगे? One of these days को कहेंगे नियर फ्यूचर. क्या कहेंगे?
नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में, one of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, हो कहेंगे lot of trouble. Her father said aggressively, थोड़ा सा वायलेंट होते हुए, एग्रेसिव होते हुए उसका पिता कहता है, क्योंकि वो उसकी कहानी को क्या समझता है, एक तरीके से बिल्कुल बेसलेस समझता है, आधारहीन समझता है. जॉब नोस इट्स ट्रू, डोंट यू जॉब? वो कहती है कि जॉब को पता ये सत्य है, क्या जॉब तुम्हें नहीं पता? He don't believe you, वो तुम पर विश्वास नहीं करना चाहता, though he had like to, हालांकि वो विश्वास करना चाहता है. See, the table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall. The table lamp जो था वो कास्ट होता है थ्रू करना, फेंकना. Amber glow, yellowish color, light across her brother's bedroom wall. उसके ब्रदर की बेडरूम वॉल थी, उसके ऊपर जो एक तरीके से टेबल लैंप था उसका येलोविश लाइट पहुंच रही थी. एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स नीथ, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी कैची. उस फर्स्ट क्लास टीम की प्रथम श्रेणी जो फुटबॉल टीम थी उसके नीचे 3 कलर्ड फोटोग्राफ भी थे, और उसमें उसको वो किसके कहे गए हैं, आयरिश प्रोडिगी. प्रोडिगी एक तरीके से देवता तुल्य होता है, यहां वंडर बॉय लगाएंगे, अद्भुत, विचित्र, विलक्षण प्रतिभा वाला डैनी कैची के चित्र थे. प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड. सोफी ने कहा कि प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे. नथिंग टू टेल इज देयर, इसमें बताने लायक बात है ही क्या. प्रॉमिस योर डैड्स मर्डर मी ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू. वो कहती है कि डैडी मर्डर मी मीन्स वो थ्रेटन करेंगे, धमकाएंगे. जॉब कहता है कि ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, केवल वो ऐसा तभी करेंगे जब वो इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि जो तुम बातें बता रही हो वो सत्य हैं. प्लीज जॉब, सोफी, भगवान के लिए सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, यू आर स्टिल एट स्कूल, यू आर स्टिल यू नो in the early days, or we can say still you are going in school, तुम अभी स्कूल में ही जा रही हो. कैची must have strings of girls. Strings of girls का मतलब lots of girls. No he doesn't, नहीं वो ऐसा नहीं है. How could you know that? तुम ये कैसे जानती हो? He jeered होता है taunting करना. jeered का मतलब यहाँ taunt करना, ताना मारना एक तरीके से. He told me that's how. As if anyone would tell a girl something like that. तुम समझती हो कि इस प्रकार की बातें कोई एक लड़की के सामने बोलेगा. Yes, he did. He isn't like that. He is quite not as quite as all that apparently. Apparently का मतलब यहाँ as visible. वो इतना शांत भी नहीं है जितना कि visible है, जितना कि दिखाई देता है. It was nothing like that, Job. It was me spoke first. Now she is going to tell that actual incident there. She said that जो टॉकिंग प्रोसेस थी वो किसने शुरू की. वो कहती है कि इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैंने ही शुरुआत में बातें शुरू की. व्हेन आई सा हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि वो कौन था, आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी केसी. मैंने कहा माफ करना, क्या तुम डेनी केसी नहीं हो. एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और थोड़ा सा हैरान दिखाई दिया. एंड ही सेड यस दैट्स ऑलराइट. उसने कहा हाँ ये सही है. एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मैं जानती थी क्योंकि वो बिल्कुल वही था. बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन. क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि उसका जो एक्सेंट था, उसका जो उच्चारण था, उसका जो बोलने का अंदाज था, तरीका था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जो पत्रकार उसका टीवी में इंटरव्यू लेते समय उसने सुना था. सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक. तो फिर क्या किया उसने? कहती है कि मैंने लिटिल डेरेक के लिए ऑटोग्राफ चाहे, बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन. लेकिन बड़ी दुविधा की बात यह थी कि हमारे पास किसी के पास भी दोनों में से कागज और पेन नहीं था. सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट. इसके पश्चात हमने थोड़ी सी बातें की अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो. रॉयस विंडो में जो कपड़े हैं उनके बारे में बातें की. ही सीम्ड लोनली, वो अकेला नजर आ रहा था. आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड. एंड देन जस्ट एज ही वाज गोइंग,
जैसे ही वो वहां से जा रहा था, he said, उसने कहा, if I would care to meet him, कि यदि वो चाहती है कि वो उससे मिले, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, he would give me an autograph then, तो निश्चित तौर पर वो उसको ऑटोग्राफ देगा। Of course I said I would। सोफी क्या कहती है कि निश्चित तौर पर मैं उससे मिलूंगी। As if he had ever saw up, जोब कहता है कि वो तुम्हें लगता है कि वो अब तुम्हें दोबारा दिखाई देगा। As if he had ever saw up, you do believe me now, don't you? He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, जो कि थोड़ी shiny shapeless थी, from the back of the chair and pushed his arms into it, और उसको अपनी भुजाओं में उसको अपनी जैकेट को पहना। She wished he paid more attention to his appearance, उसको लगता था कि वो अपनी अपीयरेंस के ऊपर, अपने दिखावट के प्रति, जो वो उसका जो फिजिक था उसके ऊपर वो ध्यान दे। Wished he cared more about clothes, अपने कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। He was tall with a strong dark face, handsome she thought, उसके बारे में वो समझती थी कि he was tall with a strong dark face, handsome. It's the unlikeliest thing I ever heard, he said. उसने कहा कि ये सबसे अनलाइकलिएस्ट थिंग है, इम्पॉसिबल थिंग है जो मैंने सुनी है। किसके बारे में? अपने बारे में जॉब कहता है। On Saturday they made their weekly pilgrimage। pilgrimage होता है रिलीजियस जर्नी। तो was यूनाइटेड का मैच देखने के लिए पूरा परिवार अगले शनिवार को जाता है। Sophie and her father and little Derek went down near the goal। लिटिल डेरेक और उसका फादर नियर दी गोल पोस्ट के पास बैठते हैं। जॉब एज ऑलवेज वेंट अप विद द मेट्स हायर अप, जबकि जॉब अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर की जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर बैठता है। यूनाइटेड वॉन 2-0, यूनाइटेड 2-0 से जीता। एंड केसी ड्रॉ इन द सेकंड गोल। ओके, ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। ब्लेंड मिक्सचर कहते हैं, इनोसेंस ऑफ आयरिश जीनियस, इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस going round two big defenders on the edge of the plenty area। दो बड़े डिफेंडर से लोहा लेते हुए प्लेंटी एरिया के पास, with her father screaming for him to pass, जबकि उसका पिता उस समय चिल्ला रहा था कि वो पास दे। and beating the hesitant goalkeeper, और हिचकिचाते हुए, दुविधा में पड़े हुए गोलकीपर को कुछ दर्जन कदम से पीछे से चकमा देते हुए उसने गोल कर दिया। सोफी ग्लाउड, सोफी चमक उठी with pride ग्रौसी। Afterwards, Job was ecstatic। इसके पश्चात जॉब भी within a great joy, वो भी बहुत ज्यादा फिर जॉय में था, खुशी में था। I wish he was an Englishman, someone said on the bus। बस में किसी ने कहा कि काश वो अंग्रेज होता। Ireland will win the World Cup। आयरलैंड निश्चय ही विश्व कप जीतेगा। Little Derek told his mother when Sophie brought him home। Her father was gone to the pub to celebrate। इस दौरान उसका पिता जो था वो पब में जा चुका था सेलिब्रेट करने के लिए। What's this you have been telling? Jency said next week। अब ये दूसरा रेफरेंस आ गया यहां तक। पिछले शनिवार को पूरा परिवार यूनाइटेड का मैच देखने के लिए और यूनाइटेड की टीम 2-0 से जीत गई। बट दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट दैट सोफी met Danny Casey personally in somehow। यदि हम जैसे तैसे कहें तो सोफी का जो इंटरेक्शन था, जो नजदीक से देखने का, वो वही था पर्सनली। इसके अलावा वो कभी भी डैनी कैजी से नहीं मिली। यहां लेट मी टेल यू द नेक्स्ट रेफरेंस गिवन हियर। व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग? जेंसी सेड। What is this you have been telling? तुम ये क्या बता रही हो? जेंसी सेड, जेंसी ने कहा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अबाउट व्हाट, किसके बारे में? Your Job told our Frank you met Danny Casey। Your Job, तुम्हारे जॉब ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली थी। This wasn't an question, ये टेस्टिंग की बात नहीं थी। But जेंसी being nosy, वो थोड़ा सा try to find out those things, those were hidden। हम कहेंगे इसको कि उन बातों को कुरेदना वो चाहती थी, समझना जानना चाहती थी। बट सोफी वॉज स्टार्टर्ड, लेकिन सोफी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थी। ओह दैट जेंसी फ्रॉम, जेंसी ने तौलिया चढ़ाते हुए कहा। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, सेंसिंग ये रियलाइज करते हुए कि सी वॉज कवरिंग, कि शायद वो कुछ बात ऐसी थी जिसको वो छुपा रही थी। यस दैट्स वेल, यस आई डिड,
You never did. जेंसी कहती तुम कभी नहीं हुई. जेंसी exclaimed. Sophie glared at the ground. सोफी ने ग्राउंड की तरफ देखा. Damn that job. This was a job thing, not a जेंसी thing. ये जॉब को बताने लायक बात तो थी, लेकिन जेंसी को बताने लायक बात नहीं थी. It was meant to be something special, just between them. इस ये दोनों के बीच की ही बात थी. Something secret, बिल्कुल secret. Go. It wasn't a जेंसी kind of thing at all. It wasn't a जेंसी kind of thing at all. टेल गॉकी जेंसी, गॉकी स्टूपिड कहेंगे, उस स्टूपिड जेंसी को बताना समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार की बात. एंड द होल नेबरहुड वुड गो गेट टू नो इट. और पूरा जो नेबरहुड है, पड़ोस है, उसमें पूरी बात का फैल जाना, ये एक तरीके से ऐसा होगा. डैम दैट जॉब वाज नथिंग सेकंड. कुछ भी वो एक तरीके से पवित्र नहीं रखता, बचा कर नहीं रखता, स्पेयर करके नहीं रखता. इट्स ए सीक्रेट मीन टू बी. आई विल कीप ए सीक्रेट शॉप. You know that. अब वो कहती है कि मैं इसको सीक्रेट बना करके रखूंगी. शॉप. I wasn't going to tell anyone. मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी. There will be a right old row if my dad gets to hear about it. फिर से वही पुराना झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा यदि मेरे फादर डैड इसके बारे में उनको पता चलेगा. जेंसी blinked. जेंसी ने आंखें झपकी. रो. I would have thought he would have been shocked as anything. Shocked का मतलब very happy. मुझे लगता है कि उसको इस बात से ज्यादा खुश होना चाहिए. She realized then that Jancy didn't know about the date bit. इसके पश्चात सोफी को लगा कि जेंसी को अभी उस डेट के बारे में नहीं पता है. जॉब hadn't told about that. जॉब ने उसके बारे में नहीं बताया. She breathed more easily. अब उसने राहत की सांस ली. So Job hadn't let her down after all. अंततः जॉब ने उसको नीचे नहीं गिराया. He believed in her after all. आखिरकार वो उसमें विश्वास करती थी. After all, some things might be second. आखिरकार कुछ तो ऐसा बना रहा जो कि बिल्कुल एक तरीके से होली था, एकदम सही था, पवित्र था, अच्छा था. It was just a light thing, really. Little thing, really. I asked him for an autograph. अब वो जेंसी को बताती है वही बातें जो जॉब को बताई थी कि मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए कहा. बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन. लेकिन हमारे पास पेपर और पेन नहीं था. सो इट वाज नो गुड. इसलिए कोई फायदा नहीं. हाउ मच हैड जॉब सेड. जॉब ने तुम्हें कितना बताया. जीसस, भगवान के लिए. आई विश आई वुड हैव बीन देयर. काश मैं भी वहां होती. ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट. निश्चित तौर पर डैड इस पर विश्वास नहीं करते. यू नो व्हाट अ मिस्ट्री ही इज. But the last thing I need is the queues of people round our houses asking him. मैं कम से कम ये नहीं चाहती कि बड़ी बड़ी लाइनें घर के पास लग जाएं पूछने वालों की, और लोग पूछने लगें What's all about Danny Casey? कि आखिरकार डैनी कैसी कैसा है. He would murder me. And you know how my mom gets when there is a row. मेरी जो मॉम है वो उसका क्या हालत हो जाती है जब कोई रो होता है, कोई थोड़ी परेशानी होती है, कोई झगड़ा होता है. जेंसी said, "Hush. You can trust me. तुम मुझ पर विश्वास करती हो. शो. You know that. तुम जानती हो. So तुम जानती हो कि I would not like to tell anyone such type of things." तो हमने इस चैप्टर में यहाँ तक ये पढ़ा कि किस प्रकार से सोफी डे ड्रीमिंग करती है. वो किस प्रकार से एक इमेजिनेशन करती है, डे ड्रीमिंग करती है. किससे मिलने का. डैनी कैजी से मिलने का. अपारेंटली यदि एक क्वेश्चन आए कि क्या वो कभी उससे मिली थी, तो हम कहेंगे कि वो कभी भी उससे नहीं मिली. एकमात्र इंस्टेंस ऐसा था जब वो मैच देखने के लिए गए थे और उन्होंने पर्सनली दूर से डैनी कैजी को खेलते हुए देखा था. यदि यही क्वेश्चन है कि डिड सोफी रियली मीट डैनी कैजी, देन यू हैव टू आंसर इट. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द today's work for you. I would like to sum up the chapter in the next part. Okay. Have a nice day.